नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किया प्रदान। कहा, बच्चों की उपलब्धियां भारत को ले जाएंगी उन्नति के शिखर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस समारोह में होंगे शामिल। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का करेंगे शुभारंभ। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक आज से। जेपीसी लेगी राज्य प्रतिनिधियों के सुझाव। आगामी बजट सत्र के दौरान सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे से प्रभावित जनजीवन। हिमाचल और उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी की आशंका। दिल्ली में आज हो सकती है बूंदाबांदी। और मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ठोस शुरुआत। 3 बल्लेबाजों ने मारे अर्धशतक। भारत ने अब तक चटकाए 2 विकेट। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। प्रत्येक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका भी दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों की उपलब्धियों को सराहा और कहा कि आप जैसे बच्चे ही भारत को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाएंगे। आपने जो काम किए हैं वो असाधारण है। आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण हैं वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वर्ष 2047 में जब हम स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के पुरस्कार विजेता लगभग 25 से 40 वर्ष आयु के प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे। ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। Ladon Kesan Snam, but English school like Presbyterian Higher Secondary School Melangwir, but English class 9, but Layo Yakani Award Namar Ba Layo Banyara Peki Sangut Kina Maklangam Jalop Haka Wa Maksar, but Snow Ban Aikubla Yakashnong, Yakayin Kasam, but Kashnong, but Yak district, but the Prime Minister, but the President of India. His name was Kisan Wanyang. 15 years old. He pursuing 9th standard in Presbyterian Higher Secondary School Malangwir, and he come from a rural village, Malangwir, and he got this. He will receiving this award because he saved the life of 4 children who have drowned in the river Moiksar. And he want to thank to the family members of those drowned children. He want to thanks to our village, the headman, the official of the village. He want to thanks to the district administration, especially from the social welfare department. He wants to thanks to the Prime Minister of India, and he wants to thanks especially to the President of India, Dr. Draupadi. My name is Kya Hatkar. I'm 14 years old and I come from Mumbai, Maharashtra. I am an author, an artist, a motivational speaker, a YouTuber, a podcaster, and a TEDx speaker. I have written 3 books. The first one being Dancing on My Wheels. The second one, which is I Am Possible.
And the third one, which I just released recently, it's called A Book on How to Write a Book. So all the books that I write are, I write them so that we can create awareness on rare diseases in India. I feel really honored, and I think I don't think I have words to express this, because for a child like me who is differently abled, it is very hard for us to get into mainstream places, like to get admission in schools, to get access to parks, or wherever we want to go. It's really hard for us to go to certain places. So I think that by getting this award, our government is actually telling that we do not exclude people, but we do include them, and this is a true example, and I could not be more honored to have received this award. I would also like to say that children with rare diseases are talented. People think that they are not talented, and most parents keep them at home thinking that they are a burden on the family, and even the society thinks of them as a curse. So I think that mindset should be changed, and opportunities must be given. मेरा नाम है सौरभ कुमार, हम सकपुरा में रहते हैं। बच्चा डूब रहे थे, बचाएं, तार के पानी से निकाले। 3 बच्चियों के, एक बच्चिया डूब गया। राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, तो हम मिला है, धन्यवाद करते हैं। मैं गोल्डी कुमारी बिहार बख्तियारपुर से आई हूँ। मुझे आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं एक एथलीट हूँ। मैं जैवलिन और शॉट पुट थ्रो करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने देश के लिए प्राउड फील करवाया, अपने देश को प्राउड फील महसूस करवाया, और मेरा सपना है कि हम ओलंपिक तक जाएं, अपने देश को, अपने नागरिक को, अपने फैमिली को प्राउड फील करवाएं। यही मेरा सपना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश भर में आज धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले साहिबजादों को याद किया जा रहा है। 26 दिसंबर 1705 को आज के दिन ही 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों ने धर्म और आस्था की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वीर बाल दिवस में शामिल होंगे। इस मौके पर वो उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों को इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर जिंदा दफन कर दिया गया था। ये साहिबजादों को याद करने और जानने का दिन है कि कैसे उनकी निर्मम हत्या की गई थी। क्या आप जानते हैं कि 26 दिसंबर का दिन सिर्फ तारीख भर नहीं है, बल्कि वीरता और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव भर देती है। ये दिन है वीर बाल दिवस का, जब इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीदों ने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। साहिबजादे यानी गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र, इनमें से 2 छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष, इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। 1705 में जब गुरु गोबिंद सिंह जी और उनका परिवार आनंदपुर साहिब छोड़ने को मजबूर हुआ, तब उनके छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने उनसे धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया।
लेकिन उन नन्हे वीरों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिख धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। इसके बाद 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ऐसा अद्वितीय साहस। वीर बाल दिवस उन साहिबजादों के बलिदान को सम्मानित करने का दिन है। ये सिर्फ सिख समुदाय का पर्व नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी उम्र में अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर का दिन सिर्फ साहिबजादों की शहादत का प्रतीक नहीं, बल्कि ये धर्म, साहस और निष्ठा की पराकाष्ठा का दिन है। इस दिन को साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इन बलिदानों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। साहिबजादों की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों से डरने के बजाय अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए खड़ा होना ही असली वीरता है। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर हम इन नन्हे शहीदों के अमर बलिदान को नमन करते हैं। तो आइए इस दिन को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनाएं। वीर बाल दिवस हमें बताता है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले अमर हो जाते हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों को और कल्याण में सुधार करना है। युवा लोगों को जोड़ने, इस दिन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई पहलें भी शुरू की जाएंगी। माईगव और माई भारत पोर्टल के जरिए इंटरेक्टिव क्विज सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन, पोस्टर बनाना जैसी दिलचस्प गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों की अद्वितीय वीरता और बलिदान को याद करते हैं। छोटी सी उम्र में ही वे अपने विश्वास और सिद्धांतों पर अडिग रहे और अपनी वीरता से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। उनका बलिदान वीरता और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है। हम माता गुजरी जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता को भी याद करते हैं। उनकी ये वीरता हमेशा हम सभी को न्यायपूर्ण और उदार समाज के निर्माण की दिशा में प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता, देशभक्ति और उनकी धर्मनिष्ठा को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की वीरता, देशभक्ति और धर्मनिष्ठा को नमन करता हूँ। इन साहिबजादों ने अपने प्राणों का त्याग करना स्वीकार किया, लेकिन धर्म और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। ये दिवस आने वाली पीढ़ी को इन चार साहिबजादों के जीवन से शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करेगा। मोदी सरकार वीर बाल दिवस के माध्यम से चार साहिबजादों की वीरगाथा को जन जन तक पहुंचा रही है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीर बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि धर्मपथ पर अडिग रहते हुए अपनी दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास का अतुलनीय परिचय देने वाले चारों वीर साहिबजादों के राष्ट्र के प्रति अमर बलिदान का ये देश सदैव ऋणी रहेगा। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर उनके बलिदान को शत शत नमन करता हूँ। उनका त्याग एवं निष्ठा हमारे जीवन मूल्य को जीने की प्रेरणा देता रहेगा। और वहीं आपको बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जीपीसी पे अब राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बैठक करेगी। ये बैठक आज और कल होगी। समिति आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रतिनिधियों के सुझाव लेगी, जबकि कल
उत्तर प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली के प्रतिनिधियों से बात करेगी। इससे पहले जेपीसी ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की थी। समिति ने विधेयक पर बोर्ड के विचार सुने। हाल ही में लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 2025 के बजट सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। 5 दिसंबर को जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने बताया कि समिति ने अपने कार्यकाल के विस्तार से पहले दिल्ली में 27 बैठकें की थीं। इन बैठकों में कई हितधारकों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चाएं शामिल थीं। और बात संभल की। संभल में चल रहे एसआई के सर्वे में इस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी की पुरानी विरासत सामने आ रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में खंडहर हो चुकी फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडहर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू भी हो चुका है। इसी क्रम में कल जिले के डीएम और एसपी ने एसआई टीम के साथ इन सभी धरोहरों का मुआयना किया। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जहां जहां प्राचीन स्थल मिलेंगे उनका सौंदर्यीकरण होगा। एएसआई के अधिकारियों के मुताबिक संभल में पर्यटन की खूब संभावनाएं हैं। यहाँ कदम कदम में इतिहास बसता है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से संभल में खुदाई और सफाई का काम लगातार चल रहा है। इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। कल भी एसआई के लोग थे, उनकी देखरेख में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर विवादित नहीं है, जैसे कूप हैं और जो हमारे अंडर में भी है, बस उनको एनक्रोचमेंट फ्री करा रहे हैं और कूपों को पुनः प्राकृतिक जल संरक्षण का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली की मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिनों का वेतन पिछले 1-2 सालों से रुका हुआ है, जिसके चलते दिल्ली वक्फ बोर्ड के कई इमाम अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साज रशीदी ने बताया कि उनकी सैलरी करीब 17 महीने से रुकी हुई है, जिस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे करीब 250 इमाम परेशान हैं। इनका वेतन मात्र 18,000 रुपये प्रति माह है। जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। वहीं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ने कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में धोखाधड़ी और नागरिकों को गुमराह करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दी। दरअसल दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट अक्षय लाखड़ा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को गुमराह किया और उनके साथ धोखा किया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 316 और 317 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा इस बात की भी पुख्ता संकेत है कि भ्रामक विज्ञापन जारी करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह की हरकत न केवल जनता के भरोसे को कमज़ोर करती है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों को धोखा देने और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करने की एक जानबूझकर की गई साजिश भी है। उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास का उल्लंघन और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग गंभीर अपराध है, जिनके लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। विश्वास है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली दंगों के आरोपियों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के दावों पर भाजपा ने कांग्रेस और एआईएमआईएम पर निशाना साधा है। दरअसल राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज हो रही है कि दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान और इशरत जहां को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली दंगों की मुख्य आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस टिकट देने की चर्चा कर रही है,
ताहिर हुसैन को पहले ही AIMIM से टिकट मिल चुका है। एक अन्य आरोपी शाहरुख पठान को AIMIM से टिकट मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट पाने के लिए ये लोग किस स्तर तक जाएंगे। MIM और कांग्रेस में कौन बनेगा वोट बैंक का सबसे बड़ा भाईजान, ये कंपटीशन चालू है। कौन कैप पॉलिटिक्स, कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में आगे निकलेगा, इसका एक प्रतिस्पर्धा शुरू है। तो दंगाइयों के साथ कौन हो सकता है सबसे ज्यादा, ये कंपटीशन आम आदमी पार्टी में तो पहले से था, पर अब कांग्रेस और MIM में भी छिड़ चुका है। पर इनमें से एक भी व्यक्ति कभी अंकित शर्मा के परिवार, दिलबर नेगी के परिवार, सोलंकी परिवार के पास नहीं गया होगा उनकी सहायता करने। ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधना है। इनको हिंदू जो मारे गए दिल्ली दंगों में, इनकी कोई चिंता नहीं। आप बता दें, रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में भारत के पहले केबल रेल पुल पर टावर वैगन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा कर लिया है। इस ट्रायल रन के साथ ही इस रूट पर जनवरी की अगर बात की जाए तो जनवरी में कश्मीर तक के लिए जो रेल सुविधा की बात है कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अजीखंड पुल पर हुए ट्रायल रन का वीडियो क्लिप साझा किया। लिंक USPRL परियोजना के लिए केवल निर्मित रेल पुल पर यह ट्रायल रन किया गया। मंत्रालय ने बताया है कि अंजीखंड पुल का काम पिछले महीने पूरा हो गया था और इस लिंक परियोजना का उद्देश्य कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल संपर्क स्थापित करना है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये पुल 96 केबल के सहारे टिका हुआ है। और आइए बात करते हैं अब मौसम की भी। दरअसल ठंड लगातार अपना असर दिखा रही है। नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इन दिनों बर्फबारी का सबसे ज़्यादा असर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के कई इलाकों में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है और इस बीच सैलानियों के हिमाचल आने का सिलसिला भी जारी है। हिमाचल में जहां बर्फबारी से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, वहीं सड़कें बाधित होने से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान घटकर माइनस में पहुंच गया है। विश्व प्रसिद्ध डल झील में शिकारा चलाना मुश्किल हो रहा है। झील में 5 इंच से भी ज़्यादा मोटी बर्फ़ की परत जमी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम में हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं तापमान गिरने के कारण लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। और वहीं कश्मीर में भी भीषण ठंड का कहर जारी है। श्रीनगर में मंगलवार को तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछली शाम को तापमान -6.6 डिग्री सेल्सियस था। तापमान में तेज गिरावट के कारण कश्मीर में जल निकाय जम गए हैं। झीलों और नदियों पर बर्फ की पतली परत आ चुकी है। लोगों को हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने लोगों और पर्यटकों से अत्यधिक ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया, क्योंकि ठंड का तापमान कश्मीर भर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां साल 2024 नक्सलियों के लिए काल बनकर आया। इस वर्ष बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन हुए। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार बड़े स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। देखिए बस्तर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक सुरक्षा बलों ने 217 नक्सलियों को मार गिराया। 879 नक्सली गिरफ्तार हुए। 816 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद हुए, जिनमें 261 आईईडी, 888 डेटोनेटर और 1219 की संख्या में कारतूस भी बरामद हुए। बस्तर के अबूझ माड़ को नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले 1 साल में सुरक्षा बलों ने सबसे ज्यादा कार्रवाई यहीं पर की है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया था और उन्होंने दोहराया था कि मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुरक्षा बल के जवान बड़ी बहादुरी के साथ नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी का कहना है कि वर्ष 2024 में बस्तर इलाके में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 217 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा कुल 217 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी माओवादियों के डेरे से रिकवर किए गए थे। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय का कहना है कि बस्तर इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। लोन वराटू अभियान, जो कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत एक अभियान है, जिसके तहत हम लोग माओवादी से अपील करते हैं सरेंडर करने के लिए। तो वर्ष 2024 में कुल 233 माओवादी ने सरेंडर किया, जिसमें 40 से अधिक माओवादी पर पूर्व से इनाम घोषित था। स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान जिसे डीआरडी दंतेवाड़ा ने किया, उसमें कुल 49 माओवादी का शव बरामद किया गया था। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। बस्तर में पिछले 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जिसका असर पूरे नक्सल प्रभावित इलाकों में देखने को मिला है। सुरक्षा बलों के जंगलों में घुसने से नक्सलियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। साल 2024 में बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 2024 में 200 से ज्यादा नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है और 837 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 2004 में आई सुनामी के पीड़ितों को पुष्पांजलि अर्पित की। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के तट पर भूकंप के कारण सुनामी आई थी। इसके प्रभाव से विभिन्न देशों के तटीय इलाकों में सुनामी का असर देखा गया था। तमिलनाडु में चेन्नई से कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय इलाके में सबसे ज़्यादा सुनामी से प्रभावित हुए थे। इस घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई थी। 20 साल पहले हिंद महासागर में आई सुनामी ने तटीय इलाकों में भयानक तबाही मचाई थी। इस सुनामी के चलते 2 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं करीब 14 देशों में इसका असर देखने को मिला था। पिछले 20 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए तकनीक का सहारा लेने के बड़े प्रयास हुए हैं। 2004 की इस भयानक त्रासदी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये विशेष रिपोर्ट। 2 दशक पहले 2004 में 26 दिसंबर को इंडोनेशिया ने सबसे भयावह आपदा देखी। इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद समुद्र के भीतर सुनामी की लहरें उठी, जिसने भयानक तबाही मचाई। सुनामी की घातक लहरों ने लगभग 2,28,000 लोगों की जान ले ली और लगभग $10 अरब का नुकसान हुआ। चेतावनी प्रणाली न होने के कारण अधिकांश पीड़ितों को भागने का समय ही नहीं मिला।
भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने 2004 की सुनामी के दौरान तत्परता दिखाई थी। चूंकि सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण था, इसलिए दूरदर्शन ने आपदा क्षेत्र से सीधे बचाव प्रयासों को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य सभी संचार चैनल बंद होने के कारण रेडियो प्रभावित क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा बन गया। वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भूकंपीय परिवर्तनों की निगरानी करने और आसन्न तरंगों के लिए अलर्ट जारी करने के लिए हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली बनाई गई थी। भारत ने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिससे कि उसकी जनता फिर कभी ऐसी भयानक स्थिति में वापस न फंसे। After this tragic event, which took about 230,000 lives and then impacted so many countries within the region, so the UN gave the mandate, provided the mandate to UNESCO's IOC to establish a end-to-end tsunami early warning and mitigation system in the Indian Ocean region. So that was when the ICG, it's called the Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, that was established to actually coordinate with all the countries in the region, all the stakeholders within the region and outside the region to work together. भारत ने 15 अक्टूबर 2007 को अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की शुरुआत की। ये एडवांस्ड कंप्यूटेशनल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। ये केंद्र लगातार भूकंपीय और समुद्र स्तर के डेटा की निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर अलर्ट जारी करता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से वास्तविक समय के डेटा प्राप्त करता है और सिर्फ 12 मिनट के भीतर 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप का पता लगा लेता है। गहरे समुद्र में मौजूद मुख्य सेंसर सुनामी के ट्रिगर होने की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ज्वार को मापने के यंत्र और गहरे समुद्र में सेंसर लगाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने डेटा प्राप्त करने और अलर्ट तुरंत भेजने के लिए एक मजबूत संचार योजना बनाई है। आज मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों की बदौलत भारत और हिंद महासागर के अन्य देश ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। 2004 में आई सुनामी ने जहां भारत काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक था, वहीं आज सुनामी से बचने की तैयारी में भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। इस तरह 2 दशक के बाद भारत एक लंबा रास्ता तय किया है और भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भविष्य की आपदाओं से लोगों की सुरक्षा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत तैयार है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर है वो है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। पहले चरण के तीसरे दिन की यात्रा में वह 2 जिलों में जाएंगे। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री दोनों जिलों में क्षेत्र भ्रमण कर विकास योजनाओं की स्थिति जानेंगे, लोगों से उनकी समस्याओं से अवगत होंगे। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उनकी राय भी जानेंगे। सीएम चीनी मिल प्रबंधन और गन्ना किसानों से बातचीत करेंगे। वहां से मनियारी गांव जाकर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत विकसित तालाब, ध्यान केंद्र, ओपन जिम का लोकार्पण करेंगे। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में अफसरों संग समीक्षा बैठक भी करेंगे। 3:30 बजे वे पटना लौट आएंगे। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान एक सिनेमा हॉल में भगदड़ को लेकर उपजे विवाद के बीच तेलुगु फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए पहुंचे। तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष और प्रसिद्ध निर्माता दिलराजू ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए फिलहाल पहुंच चुके हैं। इससे पहले अल्लू अर्जुन, मैत्री मूवीज और निर्देशक सुकुमार ने भगदड़ में मारी गई महिला रेवती के परिवार को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। और बात महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस भव्य आयोजन की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों पर नजर रखते हुए सुनिश्चित कर रहे हैं कि आयोजन सुगमता से संपन्न हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज की 5 से 6 हज़ार बसों की व्यवस्था की है। साथ ही 3 अस्थायी बस अड्डों का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे कि महाकुंभ में आने वाले
श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। समय से इसको कर लेंगे हम लोग। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर तमाम विभागों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए नगर निगम के स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने घुड़सवारी करते हुए संगम क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया। दिव्य और भव्य महाकुंभ, भव्य दिव्य और आध्यात्मिक आयोजन की तैयारी पूरी। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह तैयार। महाकुंभ में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष इंतजाम। मच्छर मक्खी से बचाने के लिए आई अत्याधुनिक 62 पल्स फॉगिंग मशीनें। अखाड़ों और टेंट को इंसेक्ट फ्री करने के लिए रहेंगे 110 ब्लोअर मिस्ट। 107 मिनी फॉगिंग मशीनों की तैनाती। हिफाजत में लगेंगे 78 स्पेशल अधिकारी। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा कुंभ मेला 2025 का निरीक्षण किया गया। उन्होंने घुड़सवारी करते हुए संगम क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया। एडीजी कानून व्यवस्था ने आईसीसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों एवं मेला अधिकारी श्री विजय किरण आनंद के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। महाकुंभ क्षेत्र में 7 स्तरीय सुरक्षा कवच स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें जल, थल और नभ से निगरानी की जाएगी। ड्रोन की तैनाती, फेस रिकॉग्निशन कैमरों और सुरक्षा कैमरों का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। भीड़ और वाहन प्रबंधन के लिए एआई आधारित कैमरों का उपयोग किया जाएगा। ये कैमरे कुंभ मेले में भीड़ की निगरानी और यातायात प्रबंधन में मदद करेंगे। महाकुंभ में साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके तहत साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी व्यवस्था की जा रही है पिलग्रिम्स के लिए, पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए, पूरी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, इन सभी चीजों की समीक्षा एडीजीएलओ कार्यालय द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला में इस बार स्वच्छता के लिहाज से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संत महात्माओं के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। अखाड़ों और टेंट सिटी को इंसेक्ट फ्री बनाने के साथ ही स्वच्छ वातावरण के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 110 अत्याधुनिक ब्लोअर मिस्ट और 107 मिनी फॉगिंग मशीन तैनात की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि महाकुंभ के दौरान कॉल करने पर ऑटोमेटिक ब्लोअर मिस्ट 30 मिनट में तय स्थान पर पहुंचेगी। महाकुंभ के दौरान चप्पे चप्पे पर कीटनाशक का छिड़काव किए जाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिए 62 पल्स फॉगिंग मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इस बार महाकुंभ में संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए 78 स्पेशल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। पर्याप्त रूप से हमारे पास मशीनें हैं, पर्याप्त रूप से हमारे पास केमिकल्स हैं, हमारे पास लार्विसाइडल हैं, इंसेक्टिसाइडल हैं, और जहाँ पे हमारे पास जो भी ग्रोथ हो रही है हमारे मच्छर की, वो एरिया कुंभ मेला के आसपास के 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया भी चिन्हित किए जा चुके हैं। महाकुंभ में पहली बार संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए इतने व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल 45 मलेरिया इंस्पेक्टरों की तैनाती की योजना बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मलयालम लेखक एमटी वासुदेवन नायर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 15 दिसंबर को सांस लेने में दिक्कत के बाद कोझिकोड के बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने मलयालम सिनेमा में भी योगदान दिया और कई फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी। उन्हें 1996 में ज्ञानपीठ और 2005 में पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले थे। केरल सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। एमटी वासुदेवन नायर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के लिए याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि
मलयालम सिनेमा और साहित्य के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक श्री M.T. वासुदेवन नायर जी के निधन से दुखी हूँ। मानवीय भावनाओं की गहन खोज के साथ उनके काम ने कई पीढ़ियों को आकार दिया और आगे भी कई लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने मूक और हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ दी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम के प्रसिद्ध लेखक M.T. वासुदेवन नायर के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि मलयालम के प्रसिद्ध लेखक श्री M.T. वासुदेवन नायर के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। उनकी रचनाओं ने ग्रामीण भारत जीवंत किया। उन्हें कई बड़े साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उन्होंने फिल्मों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैं उनके परिवार के सदस्यों और उनके पाठकों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। देश भर में शहीद उधम सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। शहीद उधम सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में हुआ था। उधम सिंह गदर पार्टी के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओराय की हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को मौत की सजा सुनाई गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। स्वदेश और स्वाभिमान के लिए पराक्रम की पराकाष्ठा तक जाने वाले सरदार उधम सिंह जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए सीमाओं की परवाह नहीं की। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर अत्याचारी अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने वाले उधम सिंह जी देशभक्त के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने गदर पार्टी के माध्यम से प्रवासी युवाओं में देशभक्ति की अलख जगाई और उन्हें संगठित किया। सरदार उधम सिंह जी का जीवन युगों युगों तक देश हित में के प्रति संकल्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ट्रांसफ्यू सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ट्रांसफ्यू शुद्ध प्रकृति ऐप 1 साल की मुफ्त सदस्यता, 1 लाख क्रेडिट पॉइंट और कार्बन मिटिगेशन पर फ्री मेंटरशिप देता है। ये उद्योगों और स्टार्टअप को ग्रीन इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने के लिए सशक्त कदम है। जापान एयरलाइंस पर आज सुबह बड़ा साइबर हमला हुआ। साइबर हमलावरों की इस करतूत की वजह से बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। साइबर हमला सुबह स्थानीय समय अनुसार 8:56 के आसपास हुआ। इस वजह से एयरलाइंस की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। एयरलाइंस के प्रवक्ता की ओर से साइबर हमले की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री को रोक दिया गया है। यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए एयरलाइंस को खेद है। वहीं जापान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर हमले की वजह से जापान एयरलाइंस की 9 घरेलू उड़ानों में देरी की खबर आ रही है। ये संख्या अभी बढ़ भी सकती है। और खबर अब खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 279 रन बना लिए। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मेज़बान टीम ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट का आगाज़ सदी हुई शुरुआत के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया के सैम कॉन्स्टास ने डेब्यू मैच में 65 गेंदों पर 60 रनों की रोमांचक अर्धशतकीय पारी खेली।
रविंद्र जडेजा ने सैम कॉन्स्टास के विकेट के तौर पर भारत को पहली सफलता दिलाई। 57 रन बनाने के बाद उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। मार्नस लम्शेन को 72 रन पर वॉशिंगटन सुंदर ने पवेलियन भेजा। फिर जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को 0 पर और मिशेल मार्श को 4 रन पर आउट किया। 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक लंबा इंतजार समाप्त हुआ। भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई। बारबाडोस में खेले गए T20 विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी। साल 2024 भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार रहा। बारबाडोस में खेले गए T20 विश्व कप फाइनल में भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व चैंपियन बना और विश्व खिताब के लिए भारत का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई। रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दी। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने फाइनल में 59 गेंद पर 76 रन की पारी खेली और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। T20 विश्व कप जीतने के बाद ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी कर दिया। विराट कोहली ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 125 मैच खेले। उन्होंने 4188 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 38 अर्धशतक शामिल रहे। T20 क्रिकेट के सफलतम बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी विश्व कप जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रोहित ने 159 T20 मैच में 4231 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे। रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 2 बार T20 विश्व कप अपने नाम किया। वे 2007 का T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। 17 साल बाद T20 विश्व चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम जब देश वापस लौटी तो प्रशंसकों ने टीम का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रतियोगिता से जुड़े अपने अनुभव उन्हें बताए। इसके बाद मुंबई में विश्व विजेता टीम की विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया। परेड के दौरान मरीन ड्राइव पर क्रिकेट प्रेमियों का जन सैलाब नजर आया। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की। अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली करारी शिकस्त से उबरते हुए भारत ने पर्थ में खेले गए बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट में 295 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत रही। वहीं विदेश में रन के लिहाज से ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। ब्रिस्बेन में सीरीज के तीसरे टेस्ट के ड्रॉ होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई और रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अश्विन 300 विकेट और 3000 रन वाले दुनिया के चुनिंदा 11 ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वहीं उनके नाम मुथैया मुरलीधरन के बराबर सर्वाधिक 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर साल 2024 भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने और दिग्गजों की विदाई के लिए याद रखा जाएगा।
क्रिकेट में क्या कुछ खास रहा 2024 में वो देखा आपने। और वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। ये रैली हल्द्वानी से शुरू होकर 35 दिनों में 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी और राज्य के सभी 13 जिलों के 99 स्थानों पर जाएगी। इस रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में सबसे ज़्यादा 14 मशाल केंद्र होंगे। मशाल रैली के समाप्त होते ही 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का विधिवत शुभारंभ होगा। साल 2024 अब विदा लेने जा रहा है। हर्षित की तरह 2024 में सिनेमा जगत का सफर भी काफ़ी हलचल भरा रहा। वैश्विक सिनेमा में भारतीय फिल्मों ने और मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने विशेष कार्यक्रम के जरिए पहले पर्दे की इस साल की भर की जो बड़ी हलचलें हैं आपके लिए समेटकर हम लाए हैं और आप देखिए इन्हें आज डीडी न्यूज़ पर आज शाम 6 बजे हमारे विशेष कार्यक्रम की आप कुछ विशेष झलकियां। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन, फिल्म, संस्कृति और कलात्मक सहयोग के उत्सव के रूप में यादगार रहा साल 2024। कान फिल्म महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बना भारत पर्व का जश्न। पायल कपाड़िया ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गईं। ला सिनेफ प्रतियोगिता का तीसरा पुरस्कार मानसी माहेश्वरी की एनिमेशन फिल्म बनी हुड को मिला। वैश्विक और भारतीय सिनेमा के 9 दिवसीय उत्सव में जुटे दुनिया भर से फिल्म निर्माता, कलाकार और सिने प्रेमी। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इफी 2024 ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक ने इफी 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक जीता। इफी 2024 में लॉन्च हुआ भारत के प्रतिष्ठित लोक प्रसारक प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स। शानदार कंटेंट और समकालीन प्रोग्रामिंग का एक समृद्ध मेल पेश कर आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा कर रहा है। लगातार दर्शकों को आकर्षित कर रहा है वेव्स। वर्ष 2022 में सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से विख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को नवाजा गया। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ फिल्म कांतारा को दिया गया। 14 दिसंबर 2024 को मनाई गई भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती। प्रधानमंत्री ने दी राज कपूर को श्रद्धांजलि। 100वीं जयंती पर राज कपूर के योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो केवल एक फिल्मकार नहीं थे, वे एक राजदूत भी थे। भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम राज कपूर ने किया। गोदरा का सच खा के बैठ गए, एक दिन देख। 15 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट लगातार सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने की इसकी तारीफ। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर्स की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। 2 दिसंबर को संसद के बाल योगी सभागार में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की विशेष स्क्रीनिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं और सांसदों ने फिल्म देखी। दुनिया भर में भारतीय फिल्मों का जलवा जारी है। भारतीय फिल्में भारत ही नहीं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। पुष्पा 2 द रूल ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया और अभी भी इसकी ताबड़तोड़ कमाई जारी है। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? कल की 2898 एडी ने भी रचा कमाई का नया रिकॉर्ड। जान के अंदर दूसरी जान।